Hello student, today I am going to discuss the third unit of your syllabus, that is about the integral calculus. I am going to share the screen here. Okay, so what is integration? Actually, integration we define as the inverse process of differentiation. Differentiation you have already studied in the first two units. In differential calculus, the basic thing is a function is given and you have to find out the differential coefficient of that function. And in integral calculus, actually the differential coefficient of a function is given and you have to find out the function itself. Okay. For example, if we say that cos x, what is the integration of cos x? We'll say the integration of cos x is sin x. Why? Because the derivative of sin x gives cos x. That is why the integration of cos x gives sin x. Similarly, if we say the integration of sin x, it will give minus of cos x, because the derivative of minus of cos x actually gives sin x. Okay. Now, suppose how we will define the integration of a function fx. Now, suppose fx is any given function of x. If we can find a function phi of x such that the derivative of phi x equal to fx, then we say the integration of fx is phi x. Okay. This is the sign of integration, and dx actually indicates the integration is to be performed with respect to the variable x. Okay. Now, what is constant of integration? Suppose the derivative of phi x is equal to fx. Then we can write the integration of fx is phi x. But you can see that the derivative of phi x plus c also give fx. Okay, where c is any arbitrary constant. So integration of fx dx will be phi x plus c, where c is any c is called the constant of integration. तो इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना जरूरी होता है इन केस ऑफ indefinite integral. Okay, we are discussing here the indefinite integral. Definite integral को हम फोर्थ यूनिट में करेंगे. उसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखना होता है, लेकिन indefinite इंटीग्रल के केस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें जरूर लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 5x टू द पावर 4 और 3 का डिफरेंशिएशन कितना है 0 है, तो 5x टू द पावर 4. सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 विल बी x टू द पावर 5 प्लस 3, where 3 is the constant of integration. Clear? Now some basic standard formula for integrals. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितना होगा x टू द पावर n प्लस 1 by n plus 1, where this is true for all integer n except n equal to minus 1. n equal to minus 1 के लिए क्या होगा, x अगर n equal to minus 1 है तो x to the power minus 1 dx, that means 1 upon x dx, and 1 upon x dx will be log x. उसका इंटीग्रेशन log x होगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 upon x होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x log x होगा. Similarly, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन
कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होगा, एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 गिव एक्स। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल एक्स वाई और जेड कितना होगा? कांस्टेंट सी होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 वैल्यू आता है, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट आएगा। इज इट क्लियर? Similarly, you have all this formula: integration of e to the power x is e to the power x plus c. Integration of sin x is minus of cos x, because the differentiation of minus of cos x is sin x. Similarly, integration of sec square x is tan x, because the differentiation of tan x gives sec square x. Integration of sec x tan x is sec x, because differentiation of sec x gives sec x tan x, and so on. तो ये सारे फॉर्मूला आपके पास है। आप एक पेज में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिखिए और राइट साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखिए। इससे आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक दूसरे के रिवर्स हैं बिल्कुल, और उससे आपको सारी फॉर्मूला भी जल्दी लर्न हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला आपके बुक में लिखे हुए हैं जो आपको लर्न करना है, बिल्कुल याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको हमने एज ए रिमार्क लिखा है। ये सारे रिमार्क आप देख लीजिएगा कि कोई भी अगर सर्कुलर फंक्शन है जैसे कि cot x, cosec x, cos x, इन सब के इंटीग्रेशन में एक नेगेटिव साइन आता है, तो इसको कहते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस ऑफ कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स। तो ये सीओ से जितने शुरू हो रहे हैं ना, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, कॉस एक्स, सबके साथ एक नेगेटिव साइन है। ओके, सेकेंड रिमार्क में देखिए, सेकेंड पॉइंट, कि अगर कोई भी फंक्शन x की जगह x प्लस a है, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, तो ये सारे फॉर्मूला एज इट इज सेम होंगे, वो एप्लीकेबल, जैसे x का पावर n के लिए जैसा था वैसे ही सेम x प्लस a टू द पावर n के लिए भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x प्लस a टू द पावर n क्या होगा? n प्लस 1 बाई n प्लस 1। 1 अपॉन x का log x होता था, 1 बाई x प्लस 5 का होगा log x प्लस 5। तो x सिर्फ x प्लस 5 से रिप्लेस हो रहा है। ओके, where 5 is any constant। लेकिन अगर x की जगह if x is replaced by ax plus b, where a and b are constant, then the above formula, जो जितने फॉर्मूला हमने अभी पहले डिस्कस किए, वो सारे रिजल्ट जो है वो a से डिवाइड हो रहा है, where a is the coefficient of x। ओके, जैसे कि ax plus b to the power n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ax plus b to the power n plus 1 by n plus 1 into 1 upon a से हमने डिवाइड किया, जो कि x के कोफिशिएंट है। सिमिलरली sec स्क्वायर 2x plus 3, तो sec स्क्वायर x क्या होता है? tan x, तो tan of 2x plus 3, लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि e to the power 5x plus 9 है, तो e to the power 5x plus 9, और x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन है तो 5 हमने डिवाइड कर दिया, और प्लस c is any constant। Now there are some important rules of integration which we are writing here in form of theorems। First rule जो है ये देखिए क्या है, where c is any constant and u is any function of x, then the integration of cu with respect to x will be c, जो भी स्केलर है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ u with respect to x, where u is a function of x
तो कितना हो जाएगा c और ux का इंटीग्रेशन, सपोज fx है तो c ऑफ fx हो जाएगा। सेकेंड जो रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंटीग्रेशन ऑफ any two or more functions will can be written as the sum of two or more functions। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx। या अगर और भी फंक्शंस उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको भी हम अलग अलग से इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। ये दोनों रूल को हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 sin x माइनस 3 cos x dx, इंटीग्रेशन को हम i से डिनोट करते हैं। तो सपोज पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? ये फंक्शन तीन फंक्शन है इसमें, सपोज fx gx hx, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ hx, तो इनको हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर ली। अब साइन एक्स के साथ 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो 2 बाहर आ गया और साइन एक्स को इंटीग्रेट किया। कॉस एक्स के साथ 3 है, 3 बाहर आ गया, कॉस एक्स को हमने इंटीग्रेट किया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ सॉरी साइन एक्स, तो माइनस ऑफ 3 साइन एक्स। और आंसर में हमने क्या लिखा, e टू द पावर x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Now come to the exercise which is given in page number 269 and 270। ठीक है, इसमें जो पहले जितने क्वेश्चंस हैं 1 to 7 वो सारे क्वेश्चंस में आपके जो इंटीग्रेशन के बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको यूज करके सारे क्वेश्चंस हो जाएगा, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये you have to integrate this function, the function is sec x upon sec x plus tan x। तो ये डायरेक्टली हम इसको किसी भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x है तो हमने माइनस sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया sec स्क्वायर माइनस tan x एंड दैट इज योर 1, और ऊपर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का sec x होता है। तो ये आपके आंसर आ गया tan x माइनस sec x प्लस c। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है you have to integrate this function 1 plus x to the power cube by x। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 plus x to the power cube को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में हमने लिख लिया, उसके बाद सबको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद x to the power n के फॉर्मूला में ये तीनों आ गए इंटीग्रेशन, वो उसको हमने लिख के दिखा दिया, और 1 upon x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो ये log x आ गया। So this is your answer। Similarly क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लेंगे, ये बहुत इजी है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स था डिनोमिनेटर में, तो हमने 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिख के इसका आंसर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में भी आपके पास ये दिया हुआ है, गिवन है 3 cos x माइनस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आपने दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में लिखा, उसके बाद cos x अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को हमने इस तरह से लिखा, तो ये आ गया इसका cot x और ये आया cosec x। तो cot x और cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ cosec x, इसको माइनस ऑफ cosec x लिखा, और ये आ गया माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो ये माइनस कॉट एक्स लिख के ये आपके आंसर आ गया। सिमिलरली यू कैन
do the rest of the questions of this exercise. Okay, in the next video, we will discuss the different methods of integration. Clear? That is, methods of integration are by substitution, by parts, by successive reduction, that we will discuss in our next video. Today, I am leaving our meeting. Okay, thank you.